Good morning to everyone. In today's lecture, we will start with in one of the Indian accounting standard called as borrowing cost, which comes under IND, Indian Accounting Standard 23. So according to Indian Accounting Standard 23, we have borrowing cost. Now, what do you mean by borrowing cost? Let us see what is borrowing cost. So borrowing cost are costs related to interest and other costs which a company, a business incurs in connection with the borrowing of funds. Means what is borrowing cost? Borrowing cost refers to borrowing cost borrowing cost means what? Borrowing cost, there are like borrowing cost can be of two types. So पहला जो होता है that are borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, कंस्ट्रक्शन, परचेस हो गया, हमने बोरो किया फॉर परचे एक्वायर करना कोई असेट को, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ a qualifying asset. Now, what is a qualifying asset? I will explain you later. Qualifying asset of a qualifying asset form that form a part, qualifying asset which form a part of the cost of that asset. मतलब ये बोरोइंग कॉस्ट क्या रहेगा? बोरोइंग कॉस्ट वो कॉस्ट है विच द बिजनेस विल bear for what? For the purpose of acquisition, construction, or producing a qualifying asset. Now, what is a qualifying asset? Qualifying asset is a asset that takes a substantial period, a huge period of time to get ready for its intended use. मतलब ये वो असेट है जो रेडी होने में, यूज करने के लिए, रेडी होने के लिए इट टेक्स अ considerable period of time. It takes a substantial period of time to get ready for its usage is known as a qualifying asset. See, when we, you must have seen कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. जब हम लोग बैलेंस शीट में फिक्स असेट, टैंजिबल, इंटैंजिबल, उसके बाद आपने देखा रहेगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज अ qualifying asset which takes a huge period of time to get ready for its usage. तो वो असेट को रेडी करने के लिए कंपनी में इनकर सम कॉस्ट, कंपनी में इनकर सम
cost, that cost is known as borrowing cost. मतलब there are other borrowing costs also which is not recognized as a asset. मतलब इसको हम asset के cost में नहीं बताएंगे. There may be other borrowing cost that may be recognized as expense. Borrowing costs are recognized as an expense. तो हम लोग को पता है, देखो नॉर्मली असेट को परचेज करते वक्त हमें कोई भी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको असेट के कॉस्ट में ही ऐड करते हैं. तो यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस कॉस्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट which such as what is borrowing cost. So let us see what does the borrowing cost include. So borrowing cost includes borrowing cost includes interest expenses, interest expense calculated, interest expense calculated using the effective interest method. So borrowing costs, as I told you, includes the interest expenses calculated using the effective interest method as described in Indian accounting standards, standard 109 financial instruments. मतलब जो इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस है विच आर इंकर्ड फॉर द प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट, उसके असेट को फॉर्म करने के लिए अगर हम कोई बोरोइंग्स करते हैं तो उस पे जो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर होता है, दैट ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस. And if there are any finance charges in respect of finance leases recognized, so you should know that according to which accounting standard it is recognized with Indian Accounting Standard 17, which is related to leases. And what does it include? It includes exchange differences arising from foreign currency borrowings, that we borrow money. If for suppose we borrow money from the foreign country to the, so that also will come under the borrowing cost under Indian Accounting Standard 23. So the exchange difference, that when you get money from the
foreign country, the difference, the conversion rate of $1, for example, dollar to rupees will change continuously. So the exchange difference arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest cost. So here one, these, see what all are coming under borrowing costs: interest expense, finance charges and exchange differences. Now with this, let us go to the sum. Let us go to the first sum. So here the first sum is Alpha Limited on 1st April 2016 borrowed 9% rupees 30 lakhs to finance the construction of two qualifying assets. The qualifying assets are those assets which take a substantial period of time to get complete. So the Alpha Limited on 1st April 2016 have borrowed rupees 30 lakhs and the rate of interest of borrowing is 9%. So why is this money borrowed? It has been borrowed to finance the construction of two qualifying assets. Now the construction started on 1st April 2016. The construction has started on 1st April 2016 and the money has also been borrowed on the same date at 9% rate of interest. Now, the loan facility was availed on 1st April 2016 and was utilized as follows, with remaining funds invested temporarily at 7%. So here what has happened, जो लो बोरोइंग्स किया गया है, ये दो क्वालिफाइंग असेट्स को बनाने के लिए बोरोइंग किया गया है. तो एक जो पहला असेट है दैट इज फैक्ट्री बिल्डिंग, जो पहला असेट है दैट इज फैक्ट्री बिल्डिंग एंड जो सेकेंड असेट है इट इज ऑफिस बिल्डिंग. ये दोनों को एक्वायर करने के लिए, ये दोनों को क्रिएट करने के लिए लोन हैज बीन टेकन. सो सबसे पहला जो अमाउंट लगा है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, क्वालिफाइंग असेट के कंस्ट्रक्शन में, वो अमाउंट लगा है ऑन, यूटिलाइज हुआ है ऑन 1st April 2016. The first amount has been utilized on 1st April 2016. It is 5 lakh for factory building and 10 lakh for office building. फिर दूसरा पोर्शन जो था लोन 30 लाख का लिया गया है, बट 1st April को सिर्फ 5 लाख एंड 10 लाख यूज हुआ है. 5 and 10 which is equal to 15 lakh. So how much amount is unused? On 1st April, the company Alpha Limited has utilized 5 lakh plus 10 lakh, that is 15 lakh of the amount on construction of two assets, factory building and office building. For the purpose 5 lakh and 10 lakh, 15 lakh has been utilized. Now what happens कि
हमने लोन तो 30 lakhs का लिया है, तो जो 15 lakhs है, 30 lakh में 15 lakh यूज हो चुका है और बाकी 15 lakh अभी भी बाकी है। तो दे से कि जो हमारे पास लोन फैसिलिटी हमने यूटिलाइज किया 1 अप्रैल 2016 को, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है जो 1 अक्टूबर को यूज होने वाला है, रिमेनिंग 15 lakhs, वो हम टेम्पररी पीरियड के लिए व्हाट वी विल डू, टेम्पररी पीरियड के लिए वी विल इन्वेस्ट दैट मनी जिसपे हमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हमने 15 लाख 1 अप्रैल में यूज किया, बाकी 15 लाख का जरूरत अभी हमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, रिमेनिंग अमाउंट जो अनयूटिलाइज है उसको हम किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, तो व्हाट वी विल गेट, we will get the rate of interest at 7%. We have been asked calculate the cost of the asset and the borrowing cost to be capitalized. कैपिटलाइज मतलब क्या, सी इधर वी कैन कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट और वी कैन ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस। देयर आर टू थिंग्स वी कैन डू, इधर वी कैन कैपिटलाइज द बोरोइंग कॉस्ट और वी कैन ट्रीट इट एज अ एक्सपेंस। कैपिटलाइज करना मतलब उसको हम, वो पोर्शन को हम असेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट वी विल ट्रीट एज अ कॉस्ट ऑफ द असेट। सो बोरोइंग कॉस्ट कितना पोर्शन है जिसको हमें कैपिटलाइज करना है, असेट के कॉस्ट में इंक्लूड करना है, दैट वी विल हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस गो टू द solution. Let us go to the solution and let us find out। हमें पहले तो क्या करना है, हमें दो चीज निकालना है, एक तो कॉस्ट ऑफ द asset, one is the cost of the asset, we want to know the cost of the asset, and second हमें चाहिए कैपिटलाइजेशन भी चाहिए। So let us see here, let us go and insert table. One minute. So here particulars, there are two qualifying assets, factory building is there, and then we have office building। So इनका कॉस्ट कितना है, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द असेट, कॉस्ट ऑफ द असेट टोटल कितना रहेगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो है 1 अप्रैल में 5 लाख लगा एंड 1 अक्टूबर में कितना कॉस्ट लगा, सी 30 lakhs we have borrowed for the construction of two qualifying asset। so factory building का total cost कितना होता है, 5 lakh plus 5 lakh which is coming to 10 lakhs is the cost, and office building का पहले 10 lakh and फिर again in the month of October additional 10 lakh, so total is coming to
20 lakhs, बट हमें इंटरेस्ट भी तो लगा है। जब हमने ये 30 lakhs का लोन लिया तो वो लोन लेते वक्त हमें 9% का क्या कर पे करना पड़ता है, हमें 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बोरोइंग्स में। सो लेट अस गो एंड फाइंड आउट हाउ मच इज द बोरोइंग कॉस्ट. So here also what I will do, I will again add 3 columns. One is for the factory building, the other one is for the office building, and here let us find out कितना borrowing cost लगा, what is the जो interest है. I have already told you interest expense in what borrowing cost includes the interest expense. तो यहाँ पे जब हमने 30 lakhs बोरो किया, तो 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ा. सो हमें क्या करना पड़ा, 9% का इंटरेस्ट बोरो करना पड़ा, 9% का इंटरेस्ट पे करना पड़ा. When has the loan facility been availed? लोन कभी लिया गया है, लोन has been taken on 1st April 2016. तो जब लोन लिया तो फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए हमने 10 लाख का लोन लिया और टोटल लोन हमने 30 lakhs का लिया है, और ऑफिस बिल्डिंग जो है उसके लिए 20 lakhs हो गया, बिकॉज 10 लाख टोटल 20 lakhs यूज हुआ है. तो इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, it will be 9% का interest. The amount of interest is 9%. So find out कितना borrowing cost हो जाएगा. Borrowing cost कितना हो जाएगा, 10 lakh का 9%, which is coming to how much? It is coming to 90,000. It is coming to 90,000. Same way फाइंड आउट 20 lakhs का 9% कितना हो जाएगा, डबल, इट विल कम टू 1,80,000. अब इसके साथ क्या हुआ है, इससे हमें ये जो बोरोइंग कॉस्ट है इसमें से लेस करेंगे, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें इन्वेस्टमेंट इनकम मिला है. देखो हम व्हाट वी हैव डन, ये हमने जब लोन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, व्हेन यू टेक अ प्लेस ऑन रेंट बेसिस, आप एक जगह लेते हो, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जब हम एक जगह लेते हैं फॉर एग्जांपल रेंट पे, तो रेंट पे लेते वक्त ये पूरा जगह मैंने ले लिया है रेंट पे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को दिस प्लेस इज गोइंग अनयूटिलाइज, मतलब खाली रहता है, कोई भी इसको यूज नहीं करते, तो वो पीरियड में अगर मैं चाहूँ तो वो जगह किसी और को सबलेट कर सकती हूँ. I can give that place to someone else so that they can use that at the time when no one is using it. मैं यूज नहीं कर रही हूँ, वो टाइम पे ये जगह खाली है, तो वो टाइम पे अगर कोई पूछता है मुझे कि ये टाइम पे आई वांट टू यूज दिस प्लेस एंड आई विल गिव यू सो मच ऑफ अमाउंट, सो वो मेरे उससे क्या हो जाएगा, मैं जो रेंट पे करती हूँ उसमें मुझे वो है सपोज 9,000 और मुझे 1,000 मिल रहा है खाली टाइम पे किसी और को ये जगह दे के, तो मेरा रेंट इनकम क्या, रेंट एक्सपेंस जो है
9,000, उसमें 1,000 मुझे मिल रहा है, तो वो माइनस करके मेरा नेट एक्सपेंस 8,000 हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे मुझे 90,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 10 lakhs के ऊपर, एंड 20 lakhs के ऊपर 1,80,000 का रेंटिंग एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है। आई एम सपोज टू, विच इज द बोरोइंग कॉस्ट विच हैज टू बी कैपिटलाइज, बिकॉज दैट इज द कॉस्ट दैट वी विल इंक्लूड। जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे लोन के ऊपर, उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, उसको हम असेट के कॉस्ट पे इंक्लूड करेंगे। बिकॉज मैंने ये लोन लिया है, तो ये लोन के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगी, that will also be treated as the cost of the asset। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर ये इन्वेस्टमेंट के बारे में, इफ दिस पॉइंट वॉज नॉट गिवन, कि जो फंड हमने लेट यूज किया उसको ऐसे रखने से तो वो पैसा ज्यादा नहीं होता, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट। वो अमाउंट को हमने इन्वेस्ट किया है एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वो जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कौन सा अमाउंट है, which is that amount which we have invested। देखो 1st April में से 5 लाख यूज किया एंड 10 लाख, that is only 15 lakh was utilized, but हमने पूरा 30 lakhs April 2016 को मिल चुका है। See here they have told the loan facility was availed on 1st April 2016, means I am having all the 30 lakhs with me, but I have utilized only 15 lakh, 5 lakh and 10 lakh। जो रिमेनिंग 5 lakh है, रिमेनिंग अमाउंट है जो मैंने लोन लिया है, वो मैं डायरेक्टली 1 अक्टूबर को ही यूज करने वाली हूँ। तो तब तक दैट अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड। तो मैंने क्या किया, 10 लाख इज द अमाउंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, बट मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लाख ही यूज किया है। तो रिमेनिंग 5 लाख व्हाट आई विल डू, at 7% rate of interest I will invest। लेकिन ये इन्वेस्ट मैं पूरा साल के लिए कर सकती हूँ या सिर्फ अप्रैल से लेके 30th सितंबर, दैट इज 1st अक्टूबर, 30th सितंबर बोलो या 1st अक्टूबर बोलो, तब तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। उसके बाद ये अमाउंट हैज टू बी यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। मतलब दिस जो 5 लाख रिमेनिंग 5 लाख है, दैट जो फैक्ट्री बिल्डिंग में आज 1 अप्रैल को यूज नहीं हुआ है, बिकॉज फैक्ट्री बिल्डिंग का कॉस्ट 10 लाख है, बट आज 1 अप्रैल में ओनली 5 लाख हैज बीन यूज्ड। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं 1 अक्टूबर को ही यूज करने वाली हूँ। तो तब तक आई एम इन्वेस्टिंग इट फॉर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को नहीं इंक्लूड कर सकते बिकॉज अक्टूबर को हमने वो पैसे को यूटिलाइज किया है। तो इट इज 6/12। एंड सेम वे जो 10 lakhs है, 10 lakhs जो हमने ऑफिस बिल्डिंग का जो यूज नहीं किया अक्टूबर तक, उसके ऊपर भी 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 6 months। सो हाउ मच इज द इन्वेस्टमेंट इनकम वी आर गेटिंग, how much investment income we are getting? Here we are getting 17,500। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट इनकम मुझे पे करना है उस पे मुझे थोड़ा पैसा मिल रहा है, तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। 90,000 पे करना है एज इंटरेस्ट इनकम ऑन 10 lakhs, but 17,500 आई एम गेटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा। सेम वे 10 लाख पे 7%, I am getting 35,000, 7% for 6 months. So what is my borrowing cost? So what is my net borrowing cost? मेरा net borrowing cost कितना हो जाएगा? मेरा net borrowing cost will be how much, which I have to capitalize, या तो मैं इसको बोल सकती हूँ
बोरोइंग कॉस्ट ब्रैकेट में टू बी कैपिटलाइज, इसको मुझे क्या करना है, कैपिटलाइज मतलब असेट के कॉस्ट में ऐड करना है, असेट के कॉस्ट में ऐड करना है. हाउ मच इज इट कमिंग, 72,500, 90,000 minus 17,500 and 1,80,000 minus 35,000. I am getting 1,45,000. तो इसको मैं क्या करूंगी, असेट के कॉस्ट में आई विल ऐड द बोरोइंग कॉस्ट, आई विल ऐड द बोरोइंग कॉस्ट. कितना हमने 30 लाख बोरो किया, तो कितना कॉस्ट हमें हो रहा है, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. तो ये जो है दैट विल बिकम द दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. तो हमें क्वेश्चन में दो चीज हैज बीन आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड अस द cost of the asset and they have asked us the borrowing cost to be capitalized. So दोनों हमने find out किया. Correct? With this sum is done. Now let us come to the next sum. X Limited has a treasury department. So X Limited के पास treasury department है that arranges funds for all the requirements of the company, including funds for working capital and expansion programs. So here X Limited has one department known as the Treasury Department, which arrange funds for all requirements, including working capital, expansion program. For every purpose, the funds are arranged. So during the year ended 31st March 2017, the company commenced the construction of a qualifying asset and incurred the following expenses. So, during the year ended 31st March 2017, the company commenced the construction of a qualifying asset. तो कंपनी ने qualifying asset construct करना start किया, and the following expenses have been incurred. 1st July 2016 को they have incurred 2,50,000 and December 1st 2016 को they have incurred 3 lakh rupees. The details of the borrowing and interest thereon are as under. तो ये तो एक्सपेंसेस हुआ क्वालिफाइंग एसेट के पीछे. क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे 1st जुलाई 2016 को 2,50,000 खर्च हुआ एंड 1st दिसंबर 2016 को 3 लाख रुपीस जो है वो इनकर हुआ. नाउ the details of the borrowings and interest thereon are as under. So they now next line they have given us the information of the borrowing. तो ये क्वालिफाइंग असेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए व्हाट बोरोइंग्स. सो बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म लोन है 10%, 10 lakhs का. फिर वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन ऑल्सो. दे हैव गिवन द डिटेल ऑफ ऑल द लोन्स. नाउ हियर ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए पूरा लोन तो यूज नहीं हुआ होगा, बट दे हैव गिवन द, बिकॉज दिस
this treasury department looks for all the requirements, funds ka requirement, expansion program, working capital, everything के लिए this department looks for the requirement of funds. तो total 15 lakh का borrowings है and interest कितना है long term loan में 1 lakh, वर्किंग कैपिटल लोन में 65,000. तो टोटल इंटरेस्ट which has been accumulated is 1,65,000. We have to find out, compute the borrowing cost that need to be capitalized. We will have to find out the borrowing cost that has to be capitalized. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कैपिटलाइज, यहाँ पे हमने देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है. They have not, like in the previous sum we were knowing the rate of interest. So यहाँ पे we will have to first find out the capitalization rate. We will have to find out the capitalization rate. Now, what is the capitalization rate? Let us see what is the capitalization rate. So, capitalization rate is a weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. मतलब यहाँ पे हमें qualifying asset को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना लोन लिया है वो तो दिया नहीं है. तो ये क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट इज द वेटेड एवरेज of the borrowing cost applicable to the borrowings of the entity. पूरा बिजनेस का जो बोरोइंग का जो रेट हमें चाहिए वो जो कि एक पीरियड में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर सी द capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the borrowing of the entity that are outstanding during the period other than borrowing made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला रहेगा टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल बोरोइंग कॉस्ट, total borrowing cost. So here we will see total borrowing cost divided by weighted average of total borrowings. Total borrowings. तो यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट. व्हाट इज द टोटल बोरोइंग कॉस्ट? टोटल बोरोइंग कॉस्ट इज 1 lakh plus 65,000 which is equal to 1,65,000. टोटल बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या? आप बोरो करते वक्त आपको क्या कॉस्ट लग रहा है? मैं बोरो कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट का कॉस्ट लग रहा है. तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट इज 1,65,000. एंड व्हाट इज द वेटेड एवरेज टोटल बोरोइंग्स? वेटेड एवरेज यहाँ पे देखो ऑलरेडी दे हैव टोल्ड एवरेज बैलेंस. सो वेटेड एवरेज total borrowings is equal to how much? It is equal to 15 lakhs. So how much we are getting? How much we are getting here? इसका परसेंटेज निकालो. So उसके लिए into 100 करना पड़ेगा. 1,65,000 divide by 15 lakhs into 100. We are getting how much? Which is equal to 11
which is equal to 11%. हमें मिल गया, हमें जो वेटर कैपिटलाइजेशन रेट था वो मिल गया. सो नाउ वी विल फाइंड आउट इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज. जो हमें पूछा गया है दैट वी विल फाइंड आउट. इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड. Interest will be capitalized as under. Interest will be capitalized. सबसे पहले which is the amount 2,50,000 पे हमें कितना फाइंड आउट करना है. 2,50,000 पे कभी लोन लिया गया है, जुलाई में, और ईयर एंड है मार्च. ईयर एंड क्या दिया है? What is the year end? Year end given in the question. Year end given in the question is 31st March 2017. So 2,50,000 पे 11% निकाला. बट 1 जुलाई से 31 मार्च कितना मंथ है, कितने मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 1 जुलाई को ये एक्सपेंस इनकर हुआ है, तो ये एक्सपेंस के ऊपर जो ये बोरोइंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा जो कैपिटलाइज हो जाएगा, विच विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द असेट. इट इज हाउ मेनी मंथ्स? 9 डिवाइड बाय 12. It is how much? 9 divided by 12. So how much we are getting? 9 divided by 12. So how much we are getting? 2625. See whether you are getting this amount. 20,625. सेम वे दूसरा अमाउंट है 3 लाख, जिसके ऊपर भी कैपिटलाइजेशन रेट है 11%. और ये जो है कभी यूज हुआ है? 1 दिसंबर को, और ईयर एंड है मार्च. तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हो जाता है 4 मंथ्स. 4 डिवाइड बाई 12. सो ये कितना हो जाएगा? इट इज कमिंग टू 11,000. It is coming to how much? It is coming to 11,000. So this both are the amount which has to be capitalized. मतलब जो लोग ने क्वेश्चन में पूछा है ना, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, वो ये अमाउंट है. 2,50,000 के ऊपर इतना अमाउंट कैपिटलाइज होगा. दैट मीन्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. 20,625 and 11,000 are the amount which has to be capitalized. Compute the borrowing cost which that needs to be capitalized. तो हमने 2,50,000 पे भी फाइंड आउट किया, हमने 3 लाख पे भी फाइंड आउट किया with the help of the capitalization rate. With this sum is done. So now let us come to the next sum. GHI Limited obtained a loan of for rupees 70 lakhs. Obtained a loan for rupees 70 lakhs on 15th April 2016 from JKL Bank. तो क्या हुआ? GHI Limited जो है, it has obtained a loan for how much? For 70 lakhs. On which date? On 15th April 2016 from JKL Bank to be utilized as under. तो here what, ये जो 70 lakhs का लोन है, ये कौन से जगह पे यूज हुआ है? हमने इससे वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ फैक्ट्री शेड. हमने फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट किया 25 lakhs का. फिर हमने मशीनरी परचेज किया
20 lakhs का। फिर हमने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया 15 lakhs। फिर हमने एडवांस दिया फॉर परचेस ऑफ अ ट्रक 10 lakhs। मतलब ये जो 70 lakhs मुझे मिला, जो GHI लिमिटेड को जो लोन दे obtained for rupees 70 lakhs on 15th April, on 15th April 2016 from JKL Bank, that was utilized as follows. फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए 25 lakhs, मशीनरी परचेज करने के लिए 20 lakhs, वर्किंग कैपिटल के लिए 15 lakhs, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 10 लाख सबको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 70 lakhs. In March 2017, construction of the factory shed was completed and machinery which was ready for its intended use was installed. Delivery of truck was received in the next financial year. Total interest of rupees 9,10,000 was charged by the bank for the financial year ending 31st March 2017. Show the treatment of interest under Indian Accounting Standard 23 which refers to borrowing cost. ये भी कभी तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, that IND Indian Accounting Standard 23 refers to what? It refers to borrowing cost. So we will have to show the treatment of interest under Indian Accounting Standard 23 and also explain the nature of assets. We have to explain the nature of assets. We have to explain the nature of asset, that whether it is a qualifying asset or it is not a qualifying asset. हमें ये बताना है कि ये borrowing cost में हम इसको क्या करेंगे. सो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड होगा या उसको हम अंडर बोरोइंग कॉस्ट क्या ट्रीटमेंट है, वेदर वी विल कैपिटलाइज द इंटरेस्ट अमाउंट और वेदर वी विल चार्ज इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें बताना है. शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइज ट्रीट करेंगे या एक्सपेंस ट्रीट करेंगे. So now what we will do, we will start the sum now. We will start the sum now. So let us here see कि हमें क्या करना है. Here they have asked us to show the treatment of interest. They have asked us to show the treatment of interest. Treatment of interest of, that is under borrowing cost as per what? Treatment of interest. Interest is a borrowing cost. So as per Indian Accounting Standard 23. Now Accounting Standard 23 also refers to borrowing cost. So here let us find the, let us calculate the, let us now insert the table, particular nature, interest to be capitalized and interest to be charged to P&L account. Sorry for the disturbance here. Particulars, we have to, next one is for nature and here हम बताएंगे क्या करना है, इंटरेस्ट को
कैपिटलाइज करना है, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज करेंगे, और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो इंटरेस्ट को दिखाएंगे। सो हियर व्हाट वी विल डू, लेट अस सी। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड। और कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड एक दिन में तो नहीं बनेगा, दिस विल टेक अ टाइम। दिस सी हियर दे हैव टोल्ड, जो ये लोन 15 अप्रैल को लिया था, बट ये कंस्ट्रक्शन कभी कंप्लीट हुआ, इन मार्च 2017 कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री शेड वाज कंप्लीटेड। तो ये जो है हम नाम समझते देख के ही समझ सकते हैं that this is a qualifying asset because factory shed एक दिन में नहीं बनेगा, that will take a period of time. So this is a nature क्या है इसका, it is a qualifying asset, it is a qualifying asset। तो qualifying asset है तो कितना टोटल इंटरेस्ट कितना है, 9,10,000। तो इसमें से ये टोटल 70 लाख के ऊपर 9,10,000 का इंटरेस्ट लगा है। तो टेल मी, अगर 9,10,000 का इंटरेस्ट 70 लाख के ऊपर है, 70 लाख के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, तो जो कि फैक्ट्री शेड को 25 लाख लगा है, तो उसके ऊपर हाउ मच इंटरेस्ट विल कम अंडर फैक्ट्री शेड। अगर टोटल 70 लाख पे 9,10,000 का इंटरेस्ट लगता है, तो 25 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, विल हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 9,10,000 into 25 divide by 70 करो, we will come to know that how much amount will be utilized। how much amount आएगा, 3,25,000, correct? it is coming to 3,25,000। तो कितना अमाउंट आ रहा है, कैपिटलाइज कितना होगा अमाउंट, 3,25,000। दिस इज द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज। अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे तो पीएनएल अकाउंट में नहीं चार्ज करेंगे। अमाउंट कैपिटलाइज करना मतलब फैक्ट्री शेड का 25 लाख हुआ है, तो हम और 3 लाख, फैक्ट्री शेड का कॉस्ट है 25 लाख, उसमें हम 3,25,000 भी ऐड करेंगे, तो फैक्ट्री शेड का कॉस्ट हो जाएगा 25 लाख प्लस 3,25,000, दैट विल कम इक्वल टू 28,25,000 will be the cost of the factory shed, will be the cost of the factory shed। when we capitalize मतलब हम इसको asset के वैल्यू में कंसिडर कर रहे। अगर हम कैपिटलाइज नहीं करते तो वो इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं ऐसा एक्सपेंस मान के। नेक्स्ट वन इज परचेस ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, परचेस ऑफ मशीनरी। सो परचेस ऑफ मशीनरी के पीछे 20 लाख खर्च हुआ है, लेकिन परचेस ऑफ मशीनरी जैसे मशीनरी विच वॉज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज वॉज इंस्टॉल्ड, मतलब जो हमने मशीनरी खरीदा वो एकदम यूज के लिए रेडी था, तो उसको हम उसके पीछे हमें कुछ, उसको हमने रेडी नहीं किया, उसको तैयार नहीं किया, जब परचेस किया तो वो यूज के लिए रेडी था, तो दिस इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। जो मशीनरी हमने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, जो मशीनरी उसको हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, उसको हमने मशीनरी को डायरेक्टली परचेज किया, इट वाज रेडी फॉर यूज। जो
यूज के लिए रेडी हो, दैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट। तो उसका कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज नहीं किया, उसके कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को देखो, ये जो उसके पीछे हमें इंटरेस्ट लगा, ये हमने जो खरीदा है मशीनरी, ये 70 लाख में खरीदा। तो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इंट AS 23 बोलता है कि अगर हम कोई, अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो उसके पीछे जो हमें बोरो करते वक्त हमने इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है उसको कैपिटलाइज नहीं करना। तो यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन अमाउंट को तो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करेंगे, पर ये इंस्टॉलेशन अमाउंट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट अमाउंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट जो लगा है 9,10,000, वेदर ये इंटरेस्ट अमाउंट को हमें कैपिटलाइज करना है, मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करना है, या इस इंटरेस्ट अमाउंट को हमें P&L अकाउंट में दिखाना है, चार्ज करना है। सो हाउ मच इज द अमाउंट? 20 डिवाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है? 70। 9,10,000, ये 70 lakhs के ऊपर इंटरेस्ट है, तो 20 lakhs विच इज द परचेज ऑफ द मशीनरी कॉस्ट, विच इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? सो करो, यू विल फाइंड आउट द अमाउंट, इट इज इक्वल टू 2,60,000. Same way, then we have working capital. नेक्स्ट वन वी हैव वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, इट इज 100% नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, दिस इज अगेन नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। तो नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट मीन्स इसका इंटरेस्ट हम बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, इसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। देखो, बोरोइंग कॉस्ट को या तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, मतलब असेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, या तो हम उसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं, या तो हम उसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हैं। सो P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। सो 9,10,000 ये टोटल इंटरेस्ट है, और वर्किंग कैपिटल इज 17 डिवाइड बाय 70। यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा 1,95,000। सेम वे लास्ट वन इज एडवांस विच वी हैव गिवन फॉर द परचेस ऑफ ट्रक। ट्रक खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो ट्रक ऑल्सो इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये भी नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट है। परचेज करने के लिए किया है इसको, ट्रक को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं दिया, नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो ये भी कैपिटलाइज नहीं होगा, ये भी P&L अकाउंट में बताना जाएगा इसका इंटरेस्ट अमाउंट। सो 9 लाख इंटू 10 लाख है एडवांस जो हमने दिया है, डिवाइड बाय 70, सो वी गेट द अमाउंट एज 1,30,000. So how much is the total amount जो कैपिटलाइज होगा? कैपिटलाइज होने का अमाउंट है 3,25,000, और यहाँ पे 2,60,000, 1,95,000, 1,30,000. When we add all the three of them, we get 5,85,000, and we add 5,85,000 plus 3,25,000. We get the total amount of interest, which is equal to 9,10,000. So with this, we have shown the treatment of interest. We have also shown the nature of asset. So with this, this sum is done. This sum is done. Let us do the next sum now. Mrs. Ayush Limited began construction of a new building, on 1st January 2017.
So Ayush Limited have started the construction of the new building on 1st January 2017. It obtained rupees 3 lakh special loan to finance the construction of the building. So 3 lakh ka special loan has been obtained to finance the construction of the building on 1st January 2017 at an interest rate of 12%. The company's other outstanding two non-specific loans were a company has other non-specific loans also. So it is 6 lakh, rate of interest is 11%, and another one non-specific loan is 11 lakh and rate of interest is 13%. The expenditure that were made on the building project were as follows. जनवरी में 3 लाख खर्चा किया बिल्डिंग के पीछे. देन अप्रैल में 3,50,000, जुलाई में 5,50,000, December में 1,50,000. So these were the amounts that were incurred on the construction of the building, which is a qualifying asset. इसको यूज में लाने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड लगा है. So it is a qualifying asset. So building कब complete हुआ? On 31st December 2017. Following the principle prescribed in the AS 23, that is borrowing cost, calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing in respect of the building. So हमें क्या करना है? सबसे पहले तो we will have to find out, calculate the amount of interest. Calculate the amount of interest to be capitalized. We have to find out the amount of interest that has to be capitalized, and then we will have to find out one journal entry भी pass करना है while capitalizing the cost and borrowing in respect of the building. So let us start this sum. So यहाँ पे see all these expenses are given. So हम लोग इसमें let us find out. So these are the expenses that were made for the building. So here what we will do, we'll come to the solution. So now सबसे पहले what we want here, see there are two type of loan. One is a special loan जो कि स्पेसिफिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है, और देर आर टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स. नॉन स्पेसिफिक लोन्स आर देर विच इज 6 लाख एंड 11 लाख, और उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है. और यहाँ पे एक लोन है जो कि स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज हुआ है. लेकिन जब हम ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का अमाउंट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ द बिल्डिंग, सो एक्सपेंडिचर मेड ऑन द बिल्डिंग व्हेन वी सी इट इज मोर देन 3 lakhs. मतलब हमने स्पेशल लोन भी यूज किया है और हमने नॉन स्पेसिफिक लोन्स को भी यूज किया है. तो हमें फाइंड करना है द इंटरेस्ट अमाउंट दैट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड. We will have to find out the interest amount that has to be capitalized. So let us first find out the computation. We want to find out the computation of average accumulated expenses. एवरेज एक्सपेंस कितना है हमें वो फाइंड आउट करना है. वो कैसे फाइंड आउट करना है, लेट अस सी. सो सबसे पहले जनवरी में हमने क्या किया, रुपीज 3 lakhs have been used for from January
टू दिसंबर, तो ये 1 जनवरी को यूज हुआ, मतलब ये फुल ईयर यूज हुआ है। तो 12/12 जनवरी से दिसंबर स्टार्टिंग, मतलब इसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, वो फुल ईयर का है। तो मतलब हम ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे हमें कि हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम पूरे 3 लाख पे पूरा 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो इसके बाद दूसरा अमाउंट है विच इज व्हाट, द नेक्स्ट अमाउंट अप्रैल में यूज हुआ है। द नेक्स्ट अमाउंट हैव बीन यूज्ड इन अप्रैल। सो व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट अमाउंट कितना है 3,50,000। ये जनवरी से यूज नहीं हुआ, ये कितना मतलब इस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो अप्रैल से दिसंबर के लिए चार्ज होगा। अप्रैल से दिसंबर मीन्स हाउ मेनी मंथ काउंट, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब कि 9 मंथ्स के लिए इस पे इंटरेस्ट काउंट होगा। तो 3,50,000 इंटू 9/12, हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग, 2,62,500। सेम वे जुलाई से कितना अमाउंट यूज हुआ है 5,50,000। तो उस पे जो इंटरेस्ट अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो जुलाई से दिसंबर, हाउ मेनी मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर is 6 months. If you want I can write here July to December. This is how much, this is अप्रैल टू दिसंबर। मतलब जो हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं वो जितना मंथ के लिए लोन लिया है, कब से लोन लिया है तब से। सो हियर पूरा साल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जैन टू दिसंबर, full 12 months. So here how much will come, 5,50,000 into 6, it is 6 divided by 12, it is coming to how much, it is coming to how much, it is coming to 2,75,000। सेम वे यहाँ पे रुपीस लास्ट हमने दिसंबर में कितना यूज किया 1,50,000 ओनली 1 मंथ, दिसंबर का ओनली 1 मंथ, दिस इज ओनली 1 मंथ दिसंबर। तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी एवरेज निकालते हैं। इट इज कमिंग टू 12,000, इट इज कमिंग टू 12,500। अभी ये सबका टोटल देखो, ये सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलता है, टोटल निकालना है अभी, टोटल निकालेंगे तो ये अमाउंट का टोटल इज कमिंग टू हाउ मच 13,50,000, मतलब पूरा मिला के 13,50,000 यूज हुआ है। बट एक्चुअली कितना अमाउंट यूज हुआ है 8,50,000। अगर हम मंथ के हिसाब से देखें, एवरेज एक्सपेंस देखें तो कितना यूज हुआ है, एवरेज एक्सपेंस देखें तो यूज हुआ है 8,50,000, 8,50,000। So with this we have got the average accumulated expense. Now हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटलाइजेशन रेट भी निकालना है फॉर नॉन स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इंटरेस्ट रेट या कैपिटलाइजेशन रेट अदर दैन, देखो फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग्स, या तो हमें रेट निकालना है फॉर नॉन स्पेसिफिक, यहाँ पे दिया है ना नॉन स्पेसिफिक लोन्स हमने लिया है। यहाँ पे वी हैव टेकन 2 टाइप ऑफ लोन, एक तो 6 लाख का, दूसरा 11 लाख का, दैट इज नॉन स्पेसिफिक लोन्स, यू कैन से नॉन स्पेसिफिक लोन्स।
तो नॉन स्पेसिफिक लोन्स के लिए व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे। अमाउंट ऑफ लोन, amount of loan is there. So here 1 minute, amount of loan, let us write the amount of loan, amount of loan, and here what is the rate of interest, and then we will find out the amount of interest also, amount of इंटरेस्ट। क्योंकि पिछले सम में हमें जब हम कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे थे तो हमें लोन का अमाउंट भी चाहिए और हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी चाहिए। तो पहला जो हमने इंटरेस्ट लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है 6 लाख 11 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% एंड 13%। सो यहाँ पे देखते हैं 6 लाख, लेट मी रिमूव दिस, so here 6 lakh and here it is 11 lakhs, 11 lakhs। so कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 11% है और यहाँ पे है 13%। तो इसका निकालो, फाइंड आउट हाउ मच यू आर गेटिंग। 11% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 11% कितना आ रहा है, जस्ट फाइंड आउट। 6 लाख का 11% you will get 66,000, that will come to 66,000 and here 11 lakh का 13% will come to 1,43,000। अब इसका टोटल निकालते हैं बिकॉज हमें कैपिटलाइजेशन का रेट डालने के लिए इसका टोटल चाहिए ताकि हमें एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मिल सके। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड करके भी, बिकॉज सी दिस लोन इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दिस आर फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्पस। जैसे हमने एक आज पहला एक दूसरा सम देखा था जिसमें वी हैड टेकन द कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पे, बिकॉज लोन वॉज नॉट स्पेसिफिक पर्पस, लॉन्ग टर्म लोन भी है, वर्किंग कैपिटल लोन भी, और यहाँ पे भी दिस 2 लोन्स आर नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दीज आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इस पे हमें कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए, तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ लोन मिल गया एंड टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। तो व्हाट विल बी द कैपिटलाइजेशन रेट, capitalization rate, or you may also call it as weighted average rate of interest। कैपिटलाइजेशन रेट बोल सकते हैं या वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, बोरोइंग कॉस्ट डिवाइड बाय व्हाट इज इट, अमाउंट ऑफ वेटेड अमाउंट। इसका नेक्स्ट बोरोइंग कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज टोटल borrowings, weighted average total borrowings is the formula, this is the formula। so यहाँ पे ये मिल गया। अभी अमाउंट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, let us substitute with the amount। so here what is the borrowing cost, it is 2,09,000। what is the weighted average total borrowings, it is 17 lakhs। into 100 करेंगे तो परसेंटेज में रेट आएगा। so how much we are getting, we are getting 12.29%, ये मिल गया। अभी now we will directly find out the interest to be capitalized, interest amount जो हमें एक्चुअली बोला गया है इंटरेस्ट। लास्ट सम में भी हमें वो 11% आ गया था, फिर हमने क्या किया, उसके बाद हमने
interest amount nikala which has to be capitalized. So interest amount to be capitalized. Interest amount to be capitalized. So there is a specific borrowing. उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है. स्पेसिफिक बोरोइंग कितना है? इट इज 3 lakhs ना. स्पेसिफिक बोरोइंग इज 3 lakhs जो कि पर्टिकुलरली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूज किया. It is at the rate of 3 lakhs. It is obtained at rupees 3 lakh at 12% rate of interest. So यहाँ पे हमें वो 3 lakh at 12%. 3 lakh at 12%. कितना होता है ये? This is equal to 36,000. फिर इसके बाद what is there? इसके बाद हमारे पास नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग है. नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग. सो नाउ लेट अस सी द नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग. नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग इज देयर. नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स. सो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स है वो कितना है? तो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स टोटल अमाउंट दैट इज स्पेंड ऑन द बिल्डिंग इज 8,50,000, जिसमें से 3 लाख तो स्पेसिफिक बोरोइंग था. टोटल हाउ मच अमाउंट से यहाँ पे दिया गया है, मंथ वाइज दिया है, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपरली नहीं था तो हमने ये जनवरी का इतना, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर ये सबको निकाल के हमने एवरेज एक्सपेंस निकाला. व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस? इट इज 8,50,000. सो 8,50,000 में 8,50,000 में 3 लाख ये स्पेसिफिक बोरोइंग. सो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग्स कितना रहेगा? 3 लाख स्पेसिफिक. तो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग विल बी 5,50,000. ये 5,50,000 के ऊपर व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन रेट? इसके ऊपर देखो, स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, मतलब इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया है. इट इज 12%. मतलब हमारे पास जो हमने 3 लाख का लोन लिया, स्पेशल लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट का परसेंटेज जो बोरोइंग कॉस्ट इट इज 12%. फिर हमारे पास नॉन स्पेसिफिक 2 लोन है, 6 लाख 11 लाख, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट was 11%, 13%. उसका हमने वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला. वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें मिला 12.29. हमें मिला 12.29%. 12.29%. सो 5 लाख what do you say, 5,50,000. 5,50,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट? 1 minute. Here 5 lakh, I want to take it in the next line. I want to take it in the next line. 1 minute. Here. So here how much it is? It is 12.29%. It is 12.29%. So here I will do 12.29%. $12.29 is coming to how much? 12.29% is coming to 1 minute. So how much amount you are getting? How much amount you are getting? 5,50,000 into 12.29% is coming to 67,595. Is coming to 67,595. तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल इंटरेस्ट
या borrowing cost to be capitalized. This will be added to the cost of the building, which is equal to 1,03,595. इसके बाद they have also asked one journal entry. Journal entry also has been asked. So journal entry सब capitalization का पूछा है ना. So कितना हमें यहाँ पे we will show that when is the building completed. Building has been completed on 31st December 2017. Building was completed on 31st December 2017. So ये डेट में हम क्या करेंगे, बिल्डिंग असेट क्रिएट हो गया है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द असेट. असेट बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है, बिल्डिंग का कॉस्ट है 3 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 5,50,000 प्लस 1,50,000. मतलब जनवरी में 3 लाख बिल्डिंग के पीछे खर्च किया, फिर अप्रैल में 3,50,000, जुलाई में 5,50,000 and December में 1,50,000 and the building got completed. So what is the total value of the building? ये सबको ऐड करते हैं तो बिल्डिंग का वैल्यू होता है 13,50,000. So the cost of the building is 13,50,000 plus capitalization. इन बोरोइंग कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज किया उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा. तो बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट होता है 14,54,595 to what goes out when we are when the asset is ready. इतना पैसा बाहर गया है कंस्ट्रक्शन के पीछे, इतना पैसा बाहर गया है कंस्ट्रक्शन के पीछे. हाउ मच अमाउंट, 14,54,595. तो यहाँ पे देखो 13,50,000 हमने एक्सपेंसेस में खर्च किया और बाकी 1,03,595 हमने इंटरेस्ट पे किया. तो बीइंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट बीइंग, 1 minute, being cost of building, being cost of building and borrowing cost. Capitalized, recorded. So cost of building and कैपिटलाइजेशन कॉस्ट ये दोनों हमने यहाँ पे शो कर लिया. सो बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग में जनवरी में 3 लाख वॉज स्पेंट, देन 3,50,000, देन 5,50,000, देन 1,50,000. and how much amount of interest was capitalized. जो interest capitalized होगा that also forms a part of value of the building, that also forms the cost of the building, cost of the asset. So total cost is 14,54,595, which will be shown in the balance sheet of the company. So with this sum is done. With this I complete borrowing cost. Thank you very much everyone.